So, very good morning, everyone. Today is the second lecture of natural healing and reversing the diseases. So, today we are going to talk about the master remedy in natural system of healing, and that natural remedy is fasting. So, we will discuss about fasting. There are few people who are yet to join, so we will wait for 2 minutes and then we will move further. Okay. So, I hope everyone has joined. आप सब ज्वाइन हो गए. अभी जो ज्वाइन नहीं हो पाएंगे they can see the recording later. Okay, so we are going to talk about the most important thing in natural healing system, that is fasting. So how to do fasting, what fasting exactly means, ये सारी चीजें हम अभी सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं. We will try to complete it in one lecture, but if it doesn't complete in one lecture, then we will continue it in next Sunday, and then we will have a discussion also on the doubts which you have. आपको जो भी doubts होंगे that we will try to clear, right? So first let's understand what is fasting. Fasting will change your life. Okay, so how it will change your life? What is the importance of fasting? So अभी आप सारे अगर सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे और हीलिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एंशिएंट हीलिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो जिसमें ग्रीक सिस्टम होगी या अपनी आयुर्वेदिक एंशिएंट सिस्टम है, इन सब में फास्टिंग was very important. Fasting was given a lot of importance. If you see the father of medicine, Hippocrates, Paracelsus, ये जो भी बड़े बड़े फिजिशियंस होकर गए हैं, ये सारे फास्टिंग को प्रिस्क्राइब करते थे एज ए मेडिसिन. दे यूज्ड टू प्रिस्क्राइब फास्टिंग एज मेडिसिन. बट नाउ you seldom see a physician prescribing fasting as a remedy to heal your disease, right? Except for those who are into natural healing, जो मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं ज्यादा करके, या कोई भी मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे आर मोर फोकस्ड ऑन गिविंग यू medicines, tablets, but fasting is not prescribed. Fasting is one of the best medicine, and it can cure your diseases, and it can also prevent many diseases. तो ये जो आपको डिसीज हो गए हैं या कोई बीमारी है तो उसको ठीक कर सकती है, और आपको भविष्य में होने वाले बीमारियों से भी ये बचा सकती है. सो fasting should be done by each and every one of us. Now we will go into the introduction of fasting, right? तो अभी ये सारे सभ्यताओं में अगर देखेंगे आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, for spiritual growth there was fasting done, right? So if you see all the religions, even in Hindu religion there are fasting, in Muslim religion there is fasting, Christians fast for a few days. So according to their religion they practice this. ये क्यों करते थे? To attain spiritual growth. अब ये स्पिरिचुअल ग्रोथ कभी मिल सकती है? The spiritual growth can be gained when your body and mind is healthy, right? तो बॉडी और माइंड अगर हेल्थी है तो आप स्पिरिचुअल ग्रोथ पा सकते हैं. तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ पाने के लिए इन सबको पता था कि आपको एक हेल्थी माइंड होना चाहिए, हेल्थी बॉडी होना चाहिए, इसीलिए फास्टिंग को प्रिस्क्राइब किया गया, राइट?
So fasting refers to complete abstinence from food for short or long period for a specific purpose, right? So I don't write the notes. We are going to share this slide with each one of you. So just focus. These are just bullet points. So just focus on the explanation and understand the concept properly, right? So fasting refers to abstinence from food for short or long period for a specific purpose. तो अगर फास्टिंग कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं हुआ तो उसको फास्टिंग नहीं कहते, राइट? सो अगर आप कहीं बाहर गए हैं और आपको कहीं खाना नहीं मिला और आप भूखे रहे तो इसको फास्टिंग नहीं कहते, नहीं, इट इज नॉट कॉल्ड फास्टिंग. सो फास्टिंग इज डन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, राइट? Now this is the nature's only universal and omnipotent remedy for healing, right? Why it is the only remedy for healing? So it is the best way you can detoxify your body, right? So most of the diseases, as I told you in the last lecture, पिछले lecture में जो मैंने बताया था कि जो बीमारियां होती है सारी accumulation of waste products की वजह से होती है, deficiency की वजह से होती है. Now fasting has the capacity to address both, right? So it can address both. It can address the removal of toxins from your body, and it can also address the deficiencies in the nutrients which you have. So there are 3 types of nutrients which I told. I request everyone to please mute themselves so that there will not be any disturbance for other participants. So it has both the capacities to detoxify your body and provide proper nutrients to your body also. So there are 3 types of nutrients I told. There are vitamins, macronutrients, micronutrients. So all these can be provided by fasting if you do it properly, right? So during fasting, there has to be a supply of nutrition also in some form. So how it can be done, that we will understand. So now I told you fasting is very important. Fasting has a lot of benefits. Now I am going to share certain benefits of fasting which are proved. There were researches conducted, and according to the research, what they found is what I am showing you. These are not something which I am displaying. There has been a lot of research on fasting, and then they have come to this conclusion, right? So first is weight loss. So if you do fasting, there are many types of fasting that we will discuss later. But if you do fasting, the first and the foremost benefit is weight loss. आपका वजन कम होने लगेगा. The unwanted weight that we have put on because of eating, that is overeating and sedentary lifestyle. तो ये ओवर ईटिंग और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से अनवांटेड वेट जो अपना बढ़ गया है, वजन बढ़ गया है, ये फास्टिंग से कम होगा. Second is promotes secretion of HGH. So it is not HCG. There is a typing mistake. It is HGH, right? That is human growth hormone. Now what human growth hormone does? Human growth hormone is very important to build muscles, right? It increases the metabolism and it is indirectly helping weight loss, right? So ये जो हार्मोन है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इसका सेक्रीशन बढ़ाता है, हेल्प्स नॉर्मलाइज इंसुलिन सेंसिटिविटी. तो आपके बॉडी में बहुत बार क्या होता है, इफ यू सी टाइप 2 डायबिटीज जो नॉर्मल अभी बहुत लोगों में होता है, इसमें होता यह है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन तो सही होता है पर उसकी जो सेंसिटिविटी होती है, जो सेल्स जिसको सेंसिटिव होती है इंसुलिन को, वो कम हो जाता है. सो नो व्हाट इट डज इज इट हेल्प्स टू नॉर्मलाइज इंसुलिन सेंसिटिविटी. सो इससे क्या होगा, जो आपके ब्लड में जो ग्लूकोज है इट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड. आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो जाएगा. बैलेंसेस ghrelin hormone. Now what is this ghrelin? What is this hormone? Now this hormone is called as hunger hormone. हंगर हार्मोन मतलब क्या होता है, जब आपको भूख लगती है तो ये जो
मुझे भूख लगी है, ये जो भावना होती है, ये इस हार्मोन के वजह से होती है, राइट? नाउ हु सेक्रेट्स इट? सो देयर आर मेनी ऑर्गन्स दैट सेक्रेट, राइट? सो इट हैज मल्टीपल फंक्शंस. ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है. इट हैज मल्टीपल फंक्शंस, बट स्टमक सेक्रेट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेट करता है, पिट्यूटरी सेक्रेट करता है. तो देयर आर मेनी वेज इट इज सेक्रेटेड. तो इससे क्या होता है? नाउ व्हाट हैपेंस इज, आपने एक हैबिट बना लिया है अपने जीवन में कि मैं इतने बजे नाश्ता करूंगा, इतने बजे खाना खाऊंगा, इतने बजे फिर से नाश्ता करूंगा, इतने बजे फिर से खाना खाऊंगा. सो व्हाट वी डू इज वी गो ऑन मंचिंग, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दिस हैबिट देयर इज डिसफंक्शन इन दिस हार्मोन लेवल. तो ये डिसफंक्शन किस तरह से होता है कि आपको जब खाने का टाइम हो जाता है, जिस जो आपने आदत अपने आप को लगाई है, उस समय आपको भूख लगने लगती है, right? So it is not properly functioning. So once you start fasting, आपने फास्टिंग शुरू कर दिया, तो उसके बाद में इस हार्मोन का लेवल जो है ये बैलेंस होता है, and you will actually feel hungry when you are hungry, right? You will not feel hungry because of your habit. You will not feel hungry because of certain stress. So there is stress factor also. तो जब ज्यादा स्ट्रेस होता है तो some people feel that if I eat I feel better, right? So ये सारे चीजें जो है ये कम हो जाएगी. There is another hormone called as leptin, which gives you a sensation that your stomach is full and now you should not eat. So the satisfaction जो होता है खाना खाने के बाद, that is leptin, right? Now lowers triglyceride levels. So आजकल आप देखेंगे तो मैक्सिमम लोगों में जंक फूड और बाकी के खाने जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे कि बहुत सारी चीजें होती है जो प्रोसेस फूड में होती है, और ये इन केमिकल्स के वजह से आपकी बॉडी में डिसफंक्शन होता है. सो ये जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है या लिपिड लेवल्स है ये बढ़ रहे हैं. नाउ इफ यू इवन चेक द लिपिड लेवल्स ऑफ ए 30-35 ईयर ओल्ड guy or a lady, you may find that the triglyceride levels are more, right? So why does this happens? This happens because of the junk food which we eat, the eating pattern which we have. तो ये सारे जो चीजें हैं ये फास्टिंग करने से आपके लिपिड लेवल्स जो है they will considerably lower, go to a lower levels, right? Helps to slow the signs of aging. Now this is very important, right? So all of us want to stay young. हम सबको यंग दिखना है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है there are certain signs of aging, right? So if you go on fasting and do fasting regularly, practice fasting regularly, these signs of aging will slow down. I don't say will disappear or it will not happen, but they will slow down. So your biological age and your actual age will first come to a same level. अब हम लोग अगर चेक करेंगे हमारे सारे ऑर्गन्स के जो फंक्शन जिस स्पीड से चल रहा है, पेस से चल रहा है, और आपका एज, तो हमको पता चलेगा कि हमारा जो बायोलॉजिकल एज है वो ज्यादा है और एक्चुअल एज जो है वो कम है. तो फर्स्ट इट विल कम टू normal, your biological age and your actual age will come to normal, and later it will still go down. So आपका जो फिजिकल एज है उससे आपके जो फंक्शंस है, आपके ऑर्गन के फंक्शंस है वो अच्छी तरह से काम करते रहेंगे. सो इट हेल्प्स टू स्लो डाउन द साइंस ऑफ एजिंग. सेल्यूलर रिपेयर. व्हाट इज सेल्यूलर रिपेयर? तो आपके सेल्स में there are certain waste material which is formed, right? So that waste material is expelled, right? और जहां जहां पे कोई इंजुरी है इंटरनल सेल्स में, so it helps to heal it, उसको हील करता है. Then reduces inflammation. Now this is very important because there are many autoimmune diseases. Autoimmune diseases का मतलब क्या होता है कि हमारे ही बॉडी के कुछ सेल्स होते हैं जो जो हमारे ही बॉडी के ऑर्गन्स को डिस्ट्रक्ट करने लगते हैं. सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज वन एग्जांपल ऑफ इट. तो इससे क्या होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने लगता है. इन्फ्लेमेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेन, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हीट, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेडनेस. तो ये तीन चीजें जो होती है ये इन्फ्लेमेशन में होती है, और इसके वजह से क्या होने लगता है, देयर आर पेन which person gets in the joints in various parts of the body,
तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। इसके वजह से इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं कोई कोई, जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, वो बढ़ जाता है। तो अगर आप फास्टिंग करेंगे तो ये जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस है दे स्लो डाउन, and research have also found that the inflammatory markers like C-reactive protein considerably reduces when a person is constantly practicing fasting. तो जब वो प्रैक्टिस करता होता है फास्टिंग तो ये कम हो जाता है। तो दिस इज ए बून फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम ऑटोइम्यून डिसीजेस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो जो ऐसे बीमारियों से जूझ रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। जो नहीं भी जूझ रहे वो अगर ये प्रैक्टिस करेंगे फास्टिंग, सो दे विल have very less chances to encounter such disease. Induce various cellular repair process. So what is this? Now this is called as autophagy. इसको autophagy कहते हैं। मतलब क्या करता है, ये जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, इसको ब्रेक डाउन किया जाता है, ब्रेक डाउन। And when the cell break down, there are certain proteins which are liberated. Now this dysfunctional protein is also metabolized. तो क्या होता है कि जो ओल्ड सेल्स है they are worn out and new cells take the job of functioning. So नए सेल्स हमारे बॉडी में बनने के कारण we are in a position to our body is in a position to function properly, right? So exactly at optimum level हमारे सारे organs function कर पाएंगे। Prevents cancer. Now there are two things. This is prevents cancer and it is very effective also in patients who are suffering from cancer. So how that we will understand. कैंसर से कैसे बच सकते हैं इससे? तो देयर आर रिसर्चेस व्हिच वर कंडक्टेड, और जिस रिसर्च में क्या पाया गया कि फास्टिंग करने से हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कुछ इस तरह से बदल जाता है कि द सेल्स व्हिच आर कैंसरस, which have the quality of malignancy, they cannot tolerate the stress which is created in the environment due to fasting. तो जो आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में जो स्ट्रेस क्रिएट होता है फास्टिंग के वजह से, ये कैंसर के सेल इसको टॉलरेट नहीं कर पाते, they cannot tolerate and they die, they are killed. So this is what happens when you fast. So it is important in preventing the cancer and also treating the cancer. Secondly, there is increase in the number of cytotoxic cells, right? तो उसको टी सेल्स भी कहते हैं हम लोग। तो ये टी सेल्स का काम क्या होता है कि जो सेल प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, जो सेल बोर्न आउट है, उनको मार देना, उनको खत्म कर देना। तो ये साइटोटॉक्सिक सेल्स जो है इसके भी लेवल्स बढ़ जाते हैं इन फास्टिंग। तो जब इसके लेवल्स बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू एक्ट वेरी वेल ऑन द कैंसरस टिश्यूज in the patients of the cancer and in preventing the cancer. Third is it reduces the serum glucose level. आपका जो ग्लूकोज लेवल है सीरम में, ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको कम कर देता है। So the most common disease which we are encountering right now is diabetes mellitus, right? Type 2 वाला. So it is helpful in this condition. Reduces सीरम इंसुलिन, राइट? तो रिड्यूस सीरम इंसुलिन मतलब क्या है कि ज्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं करना पड़ता है क्योंकि आपकी बॉडी सेंसिटिव हो गई है इंसुलिन को। सो योर पैंक्रियास को ज्यादा लोड नहीं आता, ज्यादा इंसुलिन सेक्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। देन इट आल्सो रिड्यूसेस द लेवल ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। नाउ व्हाट इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर? दिस इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर व्हिच इज जो सेल डिवीजन में इट प्रमोट सेल डिवीजन। तो जब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर कम हो जाता है तो कैंसर होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, और अगर हुआ है तो उसका जो लेवल है वो कम हो जाता है। सो इट इज हेल्पफुल इन बोथ preventing the cancer as well as treating the cancer. So patient, if there is a patient of cancer, if he starts fasting, he will find positive results. Of course, he will require professional guidance, but if he does that, he is going to get good results. Now there is one more thing. It increases the resistance to chemotherapy. तो कीमोथेरेपी को रेजिस्टेंस बढ़ाता है, मतलब क्या होता है कि फास्टिंग करने से
आपके जो if a person is having cancer and he is doing fasting, अगर वो फास्टिंग कर रहा है तो उससे क्या होगा कि आपके सेल में जो कैंसरस सेल्स होते हैं, बॉडी में जो कैंसरस सेल्स है वो पहले सेंसिटिव हो जाएंगे कीमोथेरेपी को, एंड योर नॉर्मल सेल्स विल बी रेजिस्टेंट टू कीमोथेरेपी। तो जो साइड इफेक्ट्स होते हैं कीमोथेरेपी से, ये साइड इफेक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम व्हेन द मेडिसिन इज गिवन टू किल द कैंसरस सेल्स, एट द सेम टाइम इट आल्सो किल्स द नॉर्मल सेल्स, राइट। पर फास्टिंग करने से होता ये है कि नॉर्मल सेल्स की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और कैंसरस सेल्स के रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है कीमोथेरेपी। तो इसके लिए क्या होता है कि कीमोथेरेपी से जो साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं वो नहीं होते। So it increases the resistance to chemotherapy. So even if a person is taking modern treatment for cancer, if he does fasting, he is going to get good results and he is going to recover rapidly. Now again we are coming to the cause of disease. So I want you all of you to just remember what are the causes of disease which we discussed last time. So first is overeating, sedentary lifestyle. ओवर ईटिंग कर रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं, दैट इज वन कॉज। सेकेंड इज accumulation of waste and toxins. So there is accumulation of waste and toxins in the body which causes disease. तो ये जब accumulation हो जाता है वेस्ट और टॉक्सिन का, so digestion and elimination जो है वो affect होता है, and slowly slowly the entire organism becomes diseased because there is derangement हो जाता है पूरे सिस्टम में के जो फंक्शनिंग चल रहा है वो डिरेंज हो जाता है, और जैसे ही डिरेंज हो जाता है we call that person or an individual sick person because he has symptoms, he has various disorders. Now what are the types of fasting? Let's understand what are the types of fasting. So this is first way of fasting. Abstain from food for 12 to 16 hours, right? So अब फास्टिंग शुरू करेंगे तो तुरंत फास्टिंग अपने मन से शुरू कर देंगे, हर एक को सूट होगा क्या? Is our body capable of tolerating this thing? तो इसको पहले समझना चाहिए। हर इंडिविजुअल को एक ही प्लान फास्टिंग का देंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आई टोल्ड यू गैरेलिन इज अ हार्मोन, राइट? तो कुछ लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसका लेवल थोड़ा सा भी बढ़ गया, थोड़ा सा भी होगा, लो लेवल्स में भी बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है। तो दिस इज कॉमन इन द पेशेंट्स ऑफ ओबेसिटी। तो ओबेसिटी में ये हार्मोन का लेवल बहुत कम होता है, पर फिर भी वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, दे कैन नॉट टॉलरेट हंगर, सो इट लीड्स टू एक्सेस एसिड प्रोडक्शन इन द बॉडी। और ये एक्सेस एसिड प्रोडक्शन की वजह से व्हाट हैपेंस इज a person ends into gastritis. तो गैस्ट्राइटिस में अगर नहीं जाना है तो फर्स्ट यू हैव टू understand how your body is functioning, right? So the easy way to do that is to abstain from food for 12 to 16 hours, right? So how you can do that? तो समझो आपने 7 बजे खाना खा लिया शाम को, तो अगले दिन सुबह 7 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना है। अगर आपने 8 बजे खाना खा लिया तो अगले दिन सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाना है। यू कैन टेक वाटर एट द मोस्ट, जूस इफ अगर बहुत ही टॉलरेट नहीं हो रहा है, तो देयर इज अल्कलाइन फूड दैट इज जूस दैट यू कैन टेक, तो जूस को यूज कर सकते हैं, तो दैट यू कैन डू। स्लोली इंक्रीज इट, 12 आवर्स से 13 आवर्स कीजिए, 13 आवर्स से 14 आवर्स कीजिए, 14 से 15 कीजिए, यू कैन मूव टू 16, राइट? 16 आवर्स तक फास्टिंग कर सकते हैं। और ये this can be done easily by everyone because most of the time in this 12 to 16 hours we will be sleeping, हम सोते रहते हैं। तो सोने के कारण ज्यादा भूख लगने की, we are in the relaxed state, तो ज्यादा भूख लगने की संभावना नहीं होती है। So if you have your dinner say at 7 o'clock, then till 7
पहले प्रैक्टिस कीजिए, योर बॉडी, लेट योर बॉडी गेट यूज टू इट, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, ऐसे धीरे धीरे हम बढ़ा सकते हैं. सो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ फास्टिंग. देन अल्टरनेट डे फास्टिंग. cut calories to 1/4. So for example, if you are taking 2000 calories per day, cut it to 1/4, that is 500. 500 कैलोरी लेना है, राइट? और ये अल्टरनेट डे करना है आपको. तो दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डाइटिशियंस. आप देखते हैं डाइटिशियन के पास जाएंगे, वजन कम करना है करके देंगे, तो आपका कैलोरी लेवल्स कट डाउन करेंगे. रोज के लिए होगा या फिर अल्टरनेट डे होगा या 5 डेज होगा. 5:2 भी नीचे दिया है, देखो. 5 days you have to do fasting in cutting down the calories, और बाकी के 2 दिन आपको जंक दे देते हैं, मतलब चीट डाइट देते हैं. दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू. दिस इज व्हाट वी हैव फाउंड इन द प्रैक्टिस. तो कितने भी इजीली आप बोलो उनको कि ये कैलोरीज कट डाउन करो, पर ये रोज करना होता है. तो रोज करना है तो ये डिफिकल्ट हो जाता है, इतने डिसिप्लिन में रहना बहुत लोगों को. सो इवन दो दिस सीम्स वेरी सिंपल, this is what is very difficult with that we have found in our practice. 5:2 डाइट मतलब क्या करना है कि 5 दिन नॉर्मल खाना खाना है और 2 दिन जो है वो फास्टिंग करना है, जिसमें आपको कैलोरीज जो है 1/4 को कट करना है. तो अगर बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है, ये 12-16 घंटा नहीं कर सकते, 12 घंटा फास्टिंग नहीं कर सकते, ये एवरी अल्टरनेट डे नहीं कर सकते, तो कम से कम यहाँ से शुरू कर सकते हैं. मतलब क्या, 5 दिन नॉर्मल डाइट लीजिए, पर 2 दिन जो है वो आप अपनी कैलोरीज जो है 1/4 को कट कीजिए. सो इससे क्या होगा, धीरे धीरे अपनी बॉडी को आदत होने लगेगी. ठीक है, तो धीरे धीरे आदत होने लगेगी और फिर देन वी कैन गो टू द अपर लेवल्स ऑफ फास्टिंग. वॉरियर डाइट, और दिस इज वन मोर डाइट. इसमें क्या है, फ्रूट्स और वेजिटेबल डाइट खाना है पूरा दिन भर, और शाम को आपको जो आपका नॉर्मल डिनर है वो ले सकते हैं. यू कैन हैव योर डिनर, normal dinner. This is called as warrior diet. Now methods of fasting. What are the methods of fasting? Now this is the old method, naturopathic method, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ. What we recommend and what we do in our practice, ये हम लोग लास्ट में बताएंगे आपको, आखिर में. अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो नेचुरोपैथिक वे में जिस तरह से फास्टिंग बताया गया है, दैट आई एम टेलिंग यू, वो आपको बता रहा हूं. तो जुने जो नेचुरल सिस्टम थे उसमें कहा गया था कि पानी पीना है सिर्फ, राइट? फिर बाद में उसमें चेंजेस किए गए थोड़े, एंड इट वाज फाउंड दैट जूस जो होता है 50% जूस एंड 50% वाटर, इसको अगर हम लेंगे तो इट इज मोर इफेक्टिव, बिकॉज जूस गिव्स यू न्यूट्रिशन. तो सिर्फ बॉडी में जो डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है उसके साथ में बॉडी के जो ऑर्गन्स है जो सही से काम नहीं कर रहे हैं, उनको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन भी मिलना चाहिए. इसीलिए इट वाज फाउंड दैट जूस इज वेरी इफेक्टिव, एंड जूस ऑल्सो हैज अल्कलाइन नेचर. इसको अल्कलाइन नेचर भी है, तो ये अल्कलाइन नेचर होने की वजह से आपके बॉडी को अल्कलाइन करेगा. तो ये अल्कलाइन करेगा तो दैट विल ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल. सो फास्टिंग शुड बी डन विद जूस. जूस के साथ फास्टिंग करना है, आपको कुछ भी खाना नहीं है. फर्स्ट थिंग इज एम्प्टीइंग बॉवेल बिफोर स्टार्टिंग फास्टिंग. तो क्या करना है आपको, आपके पेट को पूरी तरह से खाली करना है. दिस कैन बी डन बाय वेरियस वेज, राइट? द फर्स्ट इनिमा है वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर का इनिमा, ये लेकर भी आप कर सकते हैं. एंड एंटायर फास्टिंग पीरियड में भी आपको अल्टरनेट डे ल्यूक वार्म वाटर का इनिमा लेना है. तो इससे क्या होता है कि जो भी टॉक्सिन्स आपके बॉडी में है वो सब निकल जाते हैं, एंड दैट विल नॉट कॉज प्रॉब्लम व्हेन यू आर फास्टिंग, राइट? नहीं तो फास्टिंग करते समय अगर सही ढंग से स्टार्ट नहीं करेंगे, सो देयर आर चांसेस दैट नोशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारी चीजें हो सकते हैं, बिकॉज बॉडी विल रिएक्ट वॉलेंटली टू एलिमिनेट द टॉक्सिन्स, और वो टॉक्सिन्स निकले नहीं है. तो फर्स्ट इज आपके बॉवेल्स को एम्प्टी करना, तो दैट कैन बी डन बाय इनिमा ऑफ ल्यूकवार्म वाटर. फिजिकल रेस्ट एंड मेंटल रिलैक्सेशन. तो व्हेन यू आर डूइंग फास्टिंग,
आप कोई हेक्टिक शेड्यूल से जा रहे हैं, कोई हेक्टिक काम कर रहे हैं जिसमें आपको फिजिकल और मेंटल रेस्ट नहीं मिल रहा है, तो यू शुड अवॉइड फास्टिंग. ऐसे टाइम में फास्टिंग करके यू आर नॉट गोइंग टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग. नाउ द ड्यूरेशन ऑफ फास्टिंग, कितने समय तक हमको फास्टिंग करना है. तो इसके लिए 3 फैक्टर जो है वो बहुत जरूरी है. फर्स्ट इज एज ऑफ द पेशेंट, उस पेशेंट की उम्र कितनी है, इसको हमको जानना होगा कि ही इज यंग, ही इज ओल्ड, इसको कंसीडर करना होगा. सेकेंड इज नेचर ऑफ डिसीज, अगर उसे कोई बीमारी है इसीलिए उसको फास्टिंग करनी है, तो वो नेचर क्या है डिसीज का, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिसीज. इफ इज डूइंग इट फॉर जस्ट डिटॉक्सिफिकेशन, फॉर वेलनेस, दैट इज वेरी गुड. But if he is doing it to get rid of certain disease, so what is the nature of disease, what kind of disease he is suffering from, you should understand that. Amount of drug received, so इससे पहले कितनी दवाइयां उसने खाई है, कौन कौन सी दवाइयां खाई है, अभी कौन कौन से दवाइयां खा रहे हैं, इसके ऊपर भी वी शुड गिव स्ट्रेस एंड इम्पोर्टेंस. क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स अगर हम ले रहे हैं अभी भी, सो फास्टिंग को करने का एक अलग तरीका होता है जिसको हम लोगों को उसको देना होगा. नॉर्मल लोगों की तरह ही कैन नॉट फास्ट बिकॉज ही इज टेकिंग सो मेनी ड्रग्स, सो मेनी मेडिसिन. सो यू हैव टू सी हाउ यू कैन गिव फास्टिंग टू हिम एंड कंसिडर फास्टिंग. सो अगर सीधा उसको भी नॉर्मल आदमियों की तरह फास्टिंग दे दिया, सो ही मे एंड अप इन हॉस्पिटल because he is taking so many medicines. If a person is very sensitive and he is excessively acidic, and if you prescribe him fasting and if he starts doing fasting because of gastritis, he may get admitted in the hospital. So you should be very careful. You should have the guidance of the professionals if you are taking lot of drugs or having certain diseases. Now we will complete the contraindications and then we will stop for today. Our way of fasting we will be discussing in the next lecture. What is our way of fasting which we have found clinically very effective and anyone can do, right? So what are the contraindications, किसने नहीं करना चाहिए fasting? But there are many, but I have prescribed, I have taken few of them. First is advanced stage of tuberculosis. Second is advanced stage of diabetes mellitus. बहुत एडवांस स्टेज है, इंसुलिन ले रहे हैं, बहुत सारे दवाइयां ले रहे हैं, तो उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं फास्टिंग, पर वो इंडिविजुअलाइज लेवल पे होना पड़ेगा. देयर हैज टू बी कांस्टेंट मॉनिटरिंग. ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, शुगर सुबह शाम चेक करना चाहिए, इस तरह से वो फास्टिंग कर सकते हैं. दे कैन नॉट डू इट ऑन देयर ओन एट देयर रेसिडेंस. पेशेंट विद गैस्ट्रिक एंड डिओडिनल अल्सर्स, किसी को पेट में अल्सर्स है तो उन्होंने फास्टिंग नहीं करना चाहिए. इफ देयर आर प्रोग्रेस्ड एंड एडवांस्ड कार्डियक एंड किडनी डिसऑर्डर्स, ऐसे पेशेंट्स को भी दे कैन डू फास्टिंग, but they have to get admitted in a naturopathic hospital and under the supervision of physicians they can do fasting, but they cannot do it on their own at their home. Taking lot of drugs, बहुत सारे दवाइयां ले रहे, उनका भी सेम है, अपने आप से अपने घर पे नहीं करना है, करना ही है, so you have to visit a professional. So these are pregnancy, in pregnancy fasting नहीं करना है. तो these are all कुछ कॉमन सेंस की चीजें भी है जो समझनी है कि प्रेगनेंसी है तो फास्टिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको थोड़े थोड़े टाइम में डाइट देना पड़ता है, न्यूट्रिशन का सप्लाई होना चाहिए. सो दीज आर दी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, यही सारी चीजें है तो हम लोगों को फास्टिंग नहीं करना चाहिए. एट द सेम टाइम इफ ए पर्सन इज हैविंग डायबिटीज, हाइपरटेंशन, और वो फास्टिंग कर रहा है, और इफ ही इज डूइंग फास्टिंग फॉर से 5 days, so every day sugar has to be checked according to the sugar levels, the dose of the anti-diabetic drugs, the dose of the
एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स शुड बी टाइटर्ड, क्योंकि अगर जैसे जैसे फास्टिंग के दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने लगता है। तो इफ यू आर टेकिंग एंटी हाइपरटेंसिव्स, उसको धीरे धीरे हमको कम करते जाना होगा। तो वी हैव टू मॉनिटर द ब्लड प्रेशर, वी हैव टू मॉनिटर ऑल द वाइटल स्टैट्स ऑफ द patient and then decide whether he should continue the medicine which he is taking or he should stop while fasting. Okay, so these are the contra indications. So this is what we have learned today. In the next lecture we will be understanding the way which we prescribe fasting, and secondly how you can stay younger. So next lecture we will be completing this fasting topic completely, and we will have also a discussion, question answer session. Okay, so thank you very much for attending this lecture. We will meet next Sunday. Till then, if you have any doubts, you can ask on the group. Everyone's query will be answered personally. Thank you very much.